اچھا جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج آپ جو ہے ایک ٹینس سیکھنے والے ہیں جس کو کہتے ہیں مستقبل، بلکہ مستقبل ہوتا ہے لفظ، آنے والا وقت، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے یہ کہا تھا پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جو لفظ ورب ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے پریزنٹ ٹینس کے لیے، اعوذ، نعبد، نستعین، یہ سب پریزنٹ ٹینس کی جو ہے نا وہ سارے الفاظ ہیں۔ آپ یہ اس کو پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ فیوچر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے عرب میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کو فیوچر کے ساتھ خاص کر دیں، میں ابھی نہیں کھاؤں گا بلکہ ابھی کھانے لگا ہوں یا کھا لوں گا، ایسے میں نہیں کہا کہ میں ابھی کھا رہا ہوں، تو اب میں اس کو ذرا مستقبل کے ساتھ خاص کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ دو لفظ ہیں بھائی آپ کے پاس ایک ورب آ گیا اعوذ، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو مستقبل میں کہوں کہ یار میں پناہ مانگوں گا، تو میں کیا کروں گا؟ سمپلی سین زبر سا لگا دو اس کے شروع میں، کسی بھی ورڈ کے شروع میں، ساعوذ، میں پناہ مانگوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کون سا مانگوں گا؟ قریب، ابھی، یعنی یہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک شیلٹر یا سیک شیلٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سین زبر سا کا مطلب ہو گیا گوئنگ ٹو کے معنوں میں ایم گوئنگ ٹو جی سلیپ، آئی ایم گوئنگ ٹو یعنی آپ ابھی جلدی کچھ کرنے والے ہیں، جلد کچھ کرنے والے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور بھی ہے اس کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے سوفا، سوفا اعوذ، میں پناہ مانگوں گا، بعد میں جا کے مانگوں گا، یار میں کھا لوں گا۔ جیسے اسلی کا مطلب ہوتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں پڑھنے لگا ہوں، یار نماز پڑھنے لگا ہوں، ابھی نماز پڑھوں گا، ابھی نماز پڑھوں گا، تو آپ نے کہنا ہے سأصلی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں پناہ مانگوں گا، سوری میں نماز پڑھ لوں گا یار، تو آپ نے کہنا ہے سوف اصلی۔ آپ کو دونوں کا سمجھ آ گیا کہ سین زبر سا جی آتا ہے قریب کے مستقبل کے لیے، یعنی آپ ابھی کچھ کرنے لگے ہیں آج کل پرسوں ترسوں اس مہینے، اور اس کے بعد جو ہے صوفہ کا مطلب ہوتا ہے دور کا مستقبل، مستقبل بعید، دور کا مستقبل، اس کے لیے اب صوفہ۔ تو آپ کو جتنے ورب آتے ہیں مجھے اب نہیں پتا، اس لیے نہیں پتا مجھے کہ آپ نے ابھی تک مجھے کوئی لسٹ نہیں بھیجی جس میں آپ نے یہ لکھا ہو کہ یار مجھے یہ ورب آ گئے سر، اور میں اس کے یہ سارے بنا سکتا ہوں۔ اور یہ میں آپ کو وار کر رہا ہوں کہ اب یہ کتاب جو ہے نا آپ کی ختم ہونے والی ہے، پہلی کتاب۔ تو آپ کو اگر مستقبل، یہ جو پریزنٹ ٹینس ہے اور مستقبل ہے نہیں آیا، اور یعنی آپ کو خود بھی اندازہ نہ ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کتنے ورب آ گئے ہیں آپ کو، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ کام دیا تھا، ویسے اگر آپ کو یاد ہے نا، وہ ہم نے پڑھا تھا، وہ سبق تھا اس کا کیف اقضی یومی، اس میں نے آپ کو ورب دیے تھے، لیکن آپ لوگوں نے کچھ بھیجا ہی نہیں مجھے یار، مجھے اب نہیں پتا لگے گا نا کہ آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ تو اس ورب ایک منٹ، اس میں تو یہ ہو گیا جی آپ کا جو آج کا سبق تھا ہمارا، اس میں بہت سارے ورب ہیں۔ میں ذرا آگے آگے بھی دیکھتا ہوں کہ آگے ہم نے کچھ پڑھا ہے اس میں۔ أنا اوسل تغسل الأطباق. تو پہلا سوال تو ان کا یہ تھا نا کہ سین زبر سا جو ہے کیا سب کے ساتھ آ سکتا ہے؟ ہاں بھائی، جو بھی پریزنٹ ٹینس ہے نا، میں ہوں، تم ہو، وہ ہے، سب کے ساتھ آ سکتا ہے۔ تو پہلا اب ذرا ورب دیکھتے جائیں۔ وأنا سأقرأ القرآن. ایک دن اور بھی ہے یہ والا نا، یہ دیکھو اٹھنے والا اور وہ کام کرنے والا، لیکن ہم اس کو یہاں پہ ہی اگر وائنڈ اپ کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا دن کب شروع ہوتا ہے، میں شروع کرتا ہوں، آپ بھی اس میں اضافہ کرتے جائیں، اور ہم ایک لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈیلی روٹین لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسے لکھیں گے۔ دیکھو میں اس وقت بھی بچوں کو یہی بتا رہا تھا کہ آپ کو اپنے ورب جو ہے نا وہ پتا ہونے چاہیے کہ کتنے ورب آپ کو آ گئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اس کے لیے اچھا طریقہ بتایا تھا کہ آپ اپنے ڈیلی روٹین کو لکھیں، اور میں نے یہ بھی سب بچوں کو، سب کو میں کہتا ہوں کہ آپ نا اس کو ضروری نہیں کہ اب عربی میں لکھیں روٹین، آپ اردو میں، انگلش میں لکھ لیں، ہم اس کو فل کر دیں گے عربک سے، لیکن دیکھو اگر آپ ہلیں گے نہیں، جلیں گے نہیں، تو پھر کیسے چلے گا؟ ہاں تو جیسے میں کہتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں بھائی، انا استيقظ، انا استيقظ
पहला वर्ब عند लिख लिया है। الفجر अना अस्तयक़िज़ क़ब्ल अल-फज्र, ठीक है, क़ब्ल अल-फज्र। जी, इसके बाद दूसरा क्या काम करते हैं हम? أنا أصلي صلاة الفجر अना अतव आपने देखा ना, ये एक बार आपके पास आ गया है, इसको लिख लें यार, इसको मेहरबानी करें मेरे लिए। आप ना क्या करें कि आप ना यहाँ से शुरू करके पूरा लिखें, जैसे मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, उनको समझ नहीं आई। चलो वो देखो, ये है हुआ, हुम, और हिया, हुन्ना, फिर इसके बाद ऐसे ये सारे आप एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। फिर होगा अंता, अंतुम, अंती, अंतुन्ना। ये आज, बस ये आज का होमवर्क हो गया, ठीक है। और आखिर में लिखे फिर अना, नहनो। बस यही 10 बंदे हैं यार, हमें जो चाहिए। अगर आप ऐसे एक लाइन में ना अपने कॉपी के एक लाइन में ऐसे लिख लें, इसको उल्टा करके लिखने हैं, ठीक है। आप वहां इसको सारे लिखे, ऊपर एक कलर से लिखें, फिर नीचे दूसरे कलर से शुरू करें, जैसे मैंने किया अस्तयकिज। तो अस्तयकिज तो कहाँ आता है? अना के नीचे आता है, अना अस्तयकिजो, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करें, हुआ यस्तयकिज, ठीक है। ये हमारा आज का काम है बस। होम, हुआ एक बट वैसे वैसे रहना चाहिए, हुआ, होम, या, हुन्ना, या, हुन्ना, या, होना। हुन्ना। होना शाबाश। वाला शायद हमने नहीं पढ़ा होगा। हाँ कोई मसला नहीं, ये हुन्ना और अंतुन्ना ये दोनों हैं फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल एफ प्लूरल के लिए, ठीक है। और ये कौन सा है? ये गायब का है, यानी दे ऑल फेमिनिन डूइंग समथिंग, तो वो जागती हैं, वो जागती है, ठीक है। और अंतुन्ना आता है यू ऑल फेमिनिन, यू आर फीमेल्स, तुम सब औरतें, तुम सब जागती हो, ठीक हो गया। तो हम ये 10 बंदे हैं, इसको फाइनलाइज करते हैं कि यार आज हमारे प्रेजेंट टेंस मुकम्मल हो गया है, बस, ठीक है ना। आज शहजाद भाई सही है ना कि आज हमारा प्रेजेंट टेंस मुकम्मल हो गया। अब मैं जी मुझे जी जो भी वर्ब आता है मुझे उसमें मैं डाल लूंगा, और आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे मुझे आते हैं। तो ये मैं 20-25 आपको बना के आज ना इसको मैं कर देता हूँ, आप बस मुझसे इसके बाद ना मुझे कहते जाएं, वो हम इसमें वर्ब का इजाफा करते जाएंगे, तो हम फिर उसके बाद माजी में जा सकेंगे। वरना तो ये इधर ही पड़े रहेंगे, कब तक पड़े रहेंगे यहाँ, ठीक है। और मैं उसमें कुछ और भी करना चाह रहा हूँ आपके साथ, मसलन ये कि ऐसे ना करो, ना जागो, ये भी आज हम कर चुके हैं पहले, दोबारा भी। तो ये आपको समझ आ गया ना। अब मैं इसको आपको ना वर्ब आपको यहाँ से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जो इस क्लास को बता रहा हूँ आपको भी वही वर्ब है सारे, ठीक है। आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखो क्या क्या रहे, अना अस्तयकिज का सही। एक वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये जितने गर्दन वो है, हुआ, हुम, हिया, हुन्ना, अंता, अंतुम, अंती, अंतुन्ना, अना, नहनु। वेरी नाइस, बहुत अच्छा हो गया। आप ये लिख लें एक दफा ना, जो आपको नहीं आया ना उसको छोड़ दें आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आता है ना उसको लिखें आप, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से आपको कुछ वर्ब दे रहा हूँ, ठीक है। वर्ब आपको बहुत काम आएंगे। तो आपने खूबसूरत एक चार्ट बना ले, खूबसूरत चार्ट बना लें आप, ठीक है। आप लोग काम नहीं करते इस पे, ये जो होता है अपना एक्सेल हो जाए या फिर ये जो एमएस वर्ड है, इस पे काम करना चाहेंगे तो वो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन लिखे लिखाया आपको दे दूंगा ना, चार्ट दे दूंगा आपको, तो आपको कोई फायदा नहीं देगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका देने का। जैसे डिक्शनरी दे दूं आपको कि ये अरबी की डिक्शनरी है, तो क्या समझ आएगी आप? चले, अवद्दा, शाबाश, अता वद्दा, अना अतवद्दा, ठीक है। मैं वुजू करती हूँ। अव्वलन, अव्वलन का मतलब होगा पहले, अव्वलन, पहले। अना अतवद्दा चलो भाई, एक वर्ब आ गया आपके पास, एक और लफ्ज आ गया, अव्वलन। अव्वलन का मतलब है पहले। अव्वलन। अच्छा, इसके बाद में अना उसल्ली, ठीक कहा, अना उसल्ली अल फज्र। ये हम ये रूटीन लिख रहे हैं, सारे रूटीन लिखे, ठीक है, बनाए जरा, शाबाश। इसके बाद أنا أذكر ربي अस्कुरु रब्बी, या हम पहले कुरान मजीद को पहले कर लेते हैं। अना أنا अकरा, أक- अना अकरा अल कुरान, ठीक है। और फिर है सर मैं नमाज अज़कुर, के बाद फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों सही है। अना अज़कुरु रब्बी, नाम। इसके बाद फिर होगा ना अना अक़रउल कुरान, ठीक है, ठीक है, जैसे आप कहें, जैसे, ठीक है। इसके बाद अना अस्तइदु लिज़हाबी इलल जामिआ, हाँ, أنا أفطر एक मिनट, इससे أنا أفطر दरमियान में सर कोई काम नाश्ता करता है तो बताएं। अना अकुल अना أفطر अकुल أنا أفطر
नाश्ता अच्छा ठीक है, करते हैं। नाश्ता करते हैं। नाश्ते से पहले भी कोई काम करता है तो बताएं, वरना फिर लास्ट है ना। लास्ट की टाइम अना अतजवल, हाँ वो सही है। अना अनामु बाद सलात, ठीक है, अना अनामु बाद सलात। और मैं क्या करता हूँ, अना अतजवल, अना अतजवल, ये लिख ले, अतजवल, ये लफ्ज लिख ले अपने पास। अना अतजवल, मैं घूमती हूँ बाहर। अना अतजवल फिल हदीका, बाग में, सर फिर बाग में जरा घूम सर चहल कदमी कर लेती हूँ जी। सब लोग यूनिवर्सिटी जामिया जाके बाग में घूमते फिरते हैं ना, अच्छा सुबह अच्छा, सुबह तो जल्दी निकलना, सुबह सुबह तो जल्दी निकलना होता है। हाँ हाँ सही है, ठीक है, सही है। बस वो हम सब वर्क जमा कर लेते हैं। खैर ये जामियात वाली जिंदगी भी खत्म हो जाएगी यार, उसके बाद फिर रोगे जामिया के पीछे, ये दिन भी खत्म हो जाते हैं हमारे। हम ऐसे ही घर में बैठे होते हैं और मैं कुछ भी नहीं करता। 9 बजे तक तो हम लैपटॉप से नहीं उठते, तहज्जुद से लेके। अच्छा, ये देखे ना, अतजवल फिल हदीका हो गया, चलो ठीक हो गया। फिर उसके बाद में क्या करती हूँ, अना उफ्तिरो, इसके बाद में यहाँ शुरू करता हूँ, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ उफ्तिरो, अना उफ्तिरो अल फतूर, ठीक हो गया, शाबाश। इसके बाद में क्या करती हूँ, अना अस्ताइद्दो अस्ताइद्दो लिल जामिया या लिज़्ज़हाब, ज़हाब जाने के लिए ना, मैं तैयारी करती हूँ। अस्ताइद्दो लिज़्ज़हाब। अच्छा, ये दोनों शताब्दी दोनों नए लफ्ज आ गए हैं। एक तो जहाब है, जहाब का मतलब होता है जाना, सिर्फ इसका मतलब है जाना, ठीक है ना। तो अस्ताइद्दो, मैं तैयारी करता हूँ, ले का मतलब होता है के लिए, और जहाब का मतलब है जाने, जाने के लिए तैयारी करती हूँ या करता हूँ मैं, ठीक है। और एक लफ्ज ये भी था ना, जाने के लिए मैं अतजव्वल तैयारी वाला, करती हूँ, या अनस्ताइद्दु लिल जामिया, अतजव्वल का लफ्ज भी याद रखिए जेल में। ठीक है, ये दोनों आपकी अतजव्वल का मतलब होता है मैं वॉक करता हूँ, वॉक ऐसे। अतजव्वल, अब ये लफ्ज मुश्किल है ना, तो इसको आप रोमन में लिख लें, अतजव्वल। बोले जरा एक दफा, मैं 10 दफा दोहरा चुका हूँ, क्या लफ्ज है? अतजव्वल, अतजव्वल। वेरी नाइस। मानी है, दोनों ठीक है। अच्छा, इसके बाद और हदीका का लफ्ज भी आपके लिए नया होगा। हदीका का मतलब होता है पार्क। ये जो अब पार्क जो होते हैं हमारे यहाँ, जो पार्क होते हैं ना, उसको हदीका बोलते हैं, हदीका। बोस्तान का लफ्ज भी आपने सुना था, वो पढ़ा था आपने। बोस्तान का मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि बोस्तान की दीवारें नहीं होती और हदीका की दीवारें होती है, इतना शायद फर्क है। लेकिन सब एक ही चलता है, सबके लिए एक पार्क ही होते हैं, बाग ही होते ये अनार का भी हदीका और है। अच्छा, दरमियान में कुछ खवातीन ऐसी भी होंगी जो जामिया जाती नहीं है, तो हम वो क्या करती हैं, वो घरों को जरा ना ठीक करती है। तो वो होगा अना उरत्तिबु, हैं। हाँ, ये ये भी ठीक है, अना उरत्तिबु। मैं आपको सिर्फ वर्ब दे रहा हूँ, ठीक है, अना उरत्तिबु। अब देखो, अना ओ रत्तीबो, मैं तरतीब देता हूँ, सवारता हूँ, ठीक करता हूँ, ये तीनों उसके माने हैं, ठीक है। ओ रत्तीबो, मैं तरतीब देता हूँ। तरतीब का लफ्ज इसके अंदर छुपा हुआ है, अगर आप देखें, गौर करें तो क्या लफ्ज है? रत्तिबु। हाँ, मैं अपने, बस हाँ, मैं अपनी किताबें ठीक करता हूँ, गाड़ी ठीक करता हूँ, कुछ भी करते हैं, औरत तरतीब देता हूँ। अब दुबई में ना दो चार बातें बड़े ज्यादा लोग करते हैं, हर बंदा ऐसी है। तो चलो चलो तरतीब देते हैं, तरतीब करते हैं, तरतीब देते हैं, हर बात में तरतीब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो लोग। और दूसरा है मुश्किल नहीं। आप उनको कुछ भी कहोगे ना कि यार ये वर्ब लिख लेना आज, वो कहेंगे मुश्किल नहीं सर, मुश्किल नहीं। तो वो मतलब है कि वो नहीं होने वाला होगा। अल मलाबिस, या मलाबिस की जगह पे आप लिखिए अल बैत, घर को तरतीब देती हूँ, ठीक करती हूँ, यानी ठीक है, तरतीब में लाती हूँ। या अलबैत की जगह पे अल गुरफा कर दो, अल गुरफा या गुरफती कर दो, गुरफती के साथ अलिफ लाम नहीं आएगा। अना उरत्तिबु गुरफती, मैं अपने कमरे को ठीक करती हूँ। या मलाबिसी, अपने कपड़ों को ठीक करती हूँ। या किताबों को ठीक करती हूँ, अल कुतब, किताबों को ठीक करती हूँ, अना उरत्तिबु, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है अना अज़हबु इलल जामिआ, इलल जामिआ हो जाएगा, ठीक है, इलल जामिआ। उसके बाद क्या करती हूँ, अब मैं वहाँ पढ़ती हूँ, बिलहाफिज़। अना अदरसो, हाँ अना अदरसो पढ़ती हूँ, ठीक हो गया, अना अदरसो। या एक होगा अतअल्लमु, अच्छा अतअल्लमु को हम बाद में ले आते हैं, ये हम देखिए, एक लफ्ज है ना, एक लफ्ज हमने पढ़ा था अक़रअ, मैं रीड करती हूँ, रीड 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 करता हूँ मैं, ठीक है, अक़रा। और एक लफ्ज है अदरुसो, अदरुस का मतलब होगा स्टडी समथिंग। शाम में कर लेते हैं। अदरसो अदरुस, ठीक हो गया। या अब मैं लेती हूँ, अपने पीरियड्स लेती हूँ, तो उसके लिए होगा आखुजो, आखुजो, मैं ले, आखुज का लफ्ज अपने पास लिख ले भाइयों। आखुज का मतलब होता है लेना, किसी चीज का लेना। कोई मुझे में सारे लफ्ज आएंगे, ये अच्छी बात है कि
हमें आने चाहिए, वर्ब सारे आने चाहिए, इसका किस्सा तमाम करते हैं बस वर्ब का। ती हूँ। आप कुछ भी ले रहे हैं, आप टाइम ले रहे हैं तब भी आख हो जाएगा, आप बर्गर ले रहे हैं तब भी आख हो जाएगा। अना आखुज़ु। आकुल। शाबाश। उसके बाद अक्तुबु। अना अक्तुबु वाजिब अल मंजिली। ये फिर ऊपर हम ऊपर भी ले आ सकते हैं, अल वाजिब अल मंजिली। ये लफ्ज आ गया है अलवाजिब अल मंजिली, इसको कहते हैं होमवर्क को कहते हैं, अलवाजिब अल मंजिली, होमवर्क या वाजिब अल मंजिली, होमवर्क। सर एक मिनट वैसे ही रहने देना। हाँ शाबाश। लिख लेता हूँ। लिखिए लिखिए, कोई मसला नहीं। और ये आपको मैंने ये वीडियो भेजी हुई है ऑलरेडी, आप वहां से भी दोबारा भी देख मैं लिखती हूँ, होमवर्क लिखती हूँ। सकते। और क्या होता है उसके बाद? अना आकुल। हाँ, अना सर अल अर्जिउ। वाजिब अल मंजिल मैं ये पूरा एक लफ्ज है। कौन सा जी? ये एक ही लफ्ज है, हाँ, अलवाजिब अल होम वर्क। मंजिल कहते हैं होम को, वाजिब कहते हैं ड्यूटी को, ड्यूटी। तो यानी वो फर्ज जो घर में अदा करना होता है, घर का फर्ज, वाजिब अल मंजिली। लौटती हूँ, अना अर्जिउ इलल बैत। ठीक है, घर लौटती हूँ। और घर आके फिर मैं क्या करती हूँ? फिर मैं खाती हूँ। अना अना आकुल गदा। आकुलु। सर हम जामिया में भी खाते हैं। हाँ बस ठीक है, फिर तो सही है। अच्छा, अगर आप कहे ना जब हमें खाना है तो फिर तो इस्तिराहा में खाएंगे ना, इस्तिराहा में, ब्रेक में खाएंगे। तो अना अशरबु अल क्या होगा? अशरबुल असीर। अशरबुल असीर माल बिस्कुट। आकुलो अल बिस्कुट। बिस्कुट। अच्छा ठीक है ना, इसको अशरबुल बिस्कुट फी कैफेटेरिया, फी मकसफ भी कहते हैं इसको, और इसको हम कैफेटेरिया भी कहते हैं, कैफेटेरिया से फिल इस्तिराहा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं लौटती हूँ कर, तो मैं देखो, ये जो नाश्ता होता है या खाना दोपहर का होता है, लंच डिनर, उसके लिए लफ्ज आता है अतना वलो। इसको ध्यान में रखें, अता ना वलो। अना अतना वलुल गदा। मैं लंच करती हूँ, अना अतना वलुल गदा। वो उसली अज़्ज़ुहरा, मैं इसके बाद फिर जोहर की नमाज पढ़ती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करती हूँ? रेस्ट। आर जी। हाँ, रेस्ट करती हूँ मैं। अस्तरीह। अस्तरीह कलीलन। अस्तरीह कलीलन, थोड़ी देर के लिए मैं आराम करती हूँ। उसके बाद सही है। अर्जिउन अल बैत। ये ज्यादा हो गया, सबक ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा तो नहीं लिखवा दिया? ये तो मैं रूटीन लिखवा रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल रूटीन है, आसान है ना ये? ना। नाम। हम्म, ये तानिया है और हफ्सा भी है कि चली गई है? वो है इधर ही, तानिया है कि? इधर ही। नाम। नाम या उस्ताद। तानिया है, तानिया। नाम। नाम। हाँ तानिया है। अच्छा जी, तो अस्तरीह कलीलन के बाद क्या करती हूँ? अर्जिउन अल बैत। हाँ नहीं नहीं, ये हम तो वापस आ चुके हैं, ये तो अभी असर होने वाली है, तो उसली अल असर, और असर के सर बाद। हम असर पे टाइम गाड़ा। हाँ, सर हम असर के वक्त पहुंचते हैं ना। अच्छा, हुए ठीक हो गया, सही है। चलो भी इसको हम उधर उधर ले आए, अर्जिओ को इधर ले आए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? घर वापस आके क्या करते हैं? हमने एक, देखो, हम एक ऐसी रूटीन, जो आइडियल रूटीन है ना, वो अपना रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें आप अपना रूटीन उसमें डालते जाएं, ठीक है, चेंज करते जाए ना। हम तो एक आइडियल रूटीन जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, बताएं फिर क्या क्या करते हैं लोग? असली अल-ज़ुहरा, अल असरा, और उसके बाद अमशी इलल अकराउल। इलल मलअब। क्या करते हैं तो बताएं, ऊंचा बताएं। अकराउल किताब। हाँ नहीं नहीं, असर के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे करता हूँ कि असर के बाद ना इसको मलअब करते हैं, अमशी इलल मलअब, अमशी इलल मलअब। मैं प्लेग्राउंड स्टेडियम जाती हूँ। अल मलअब, सॉरी, ये मलअब करते हैं इसको, ठीक है। अल मलअब, मलअब यानी कि प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड जाती हूँ। अच्छा, मगरिब तो वहाँ पढ़ती हूँ, मगर चलो आ गई, वहाँ से आ गई। वो अजरी, अच्छा यहाँ पे अजरी लिखे हैं, वो अजरी कलीलन, थोड़ी दौड़ दौड़ लगाती हूँ, अजरी, दौड़ती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, उसली अल मगरिब, और मगरिब के बाद मैं क्या करती हूँ? अकरऊ। ये अकरऊ हमने पढ़ चुके हैं, अकरऊ तो ऑलरेडी हम कुरान के साथ कर चुके हैं ना, ये वर्क छोड़ दें। यहाँ लिखें उराजिउ। उराजिउ, अपनी रिवाइज करती हूँ, उराजिउ दुरूसी। उराजिउ दुरूसी, मैं अपने जो है हमारे सबक दोहराती हूँ। अच्छा, फिर क्या करती हैं?
یہ اس کے ساتھ بھی اکتب واجب المنزلی بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر صلی نہیں پہلے کھانا کھاتی ہوں. اتناولو العشاء، ٹھیک ہے، یہ اتناولو العشاء کریں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے عشاء پڑھیں گی، ٹھیک ہے، صلی العشاء، عشاء. اچھا پھر کیا کرتی ہیں؟ یار اب سونے دیں. بس سو جاتے آتے ہی سو جاتے ہیں بدل عشاء ہو نعم. وشاہد الجواز. ہاں انا اشاہد التلفاز، پہلے تلفاز ہوا کرتے تھے، تلفاز یعنی کہ ٹی وی دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے. یا پھر ہم کہیں گے الجوال. جوال کا دوسرا نام بھی ہے، اس کو کہتے ہیں محمول. جوال کو محمول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. موبائل کو دو نام دیتے ہیں، محمول اور جوال. اور اس کے بعد انا انام مبکرا. ہاں وہ انام مبکرن، انام بھی یہاں پہ آخر میں انام آ گیا، ٹھیک ہے. انام مبکرن. یہاں ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، ذرا اس کو اپنے پاس لکھ لیں. لکے، لکے تاکہ، لکے استيقظ مبکرن، تاکہ میں صبح جلدی جاگ سکوں. استيقظ مبکرن، لکے کو لکھ لیں بس. اب دیکھیں آپ کے پاس کتنے ورب جمع ہو گئے، کوئی گن کے مجھے بتائے گا، گن لیں کتنے ورب جمع ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ چھٹی والے دن اور بھی کام بڑھ جاتے ہیں نا. 16 ورب آ گئے، 16-17 ہو گئے ہیں. 16 ورب آ گئے ہیں جس میں 16. ہم ہاں اب ورب اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی بنا لیں، لکھ لیں اپنے پاس آ جائیں گے. اس طرح پھر مائی بیسٹ فرینڈ پہ ایک لکھیں گے مضمون. کتنا ہوتا ہے؟ زہر تو 100% ہوتا ہے نا، 100% سے تھوڑا کم کر دیں، تو کم کر دیں، 70% کر دیں. یہ مجھے 70% زہر لگتے ہیں جو خاموش یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کیسے بولیں گے آپ جب زیادہ نہیں بولیں گے؟ تو کیسے آپ سیکھیں گے؟ آپ اسپیکنگ کے لیے آئے ہوئے نا، گرامر تو آپ نے پیا ہوا ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ تو ہوتا ہے. ہاں اب پتہ لگے آپ کو کہ کون خاموش رہتا ہے؟ پتہ لگے آپ کو؟ یہ ہے وہ لڑکی جو خاموش رہتی ہے، بولتی نہیں ہے، اور بولتی بھی ہے تو ایسے بولتی ہے لگتا نہیں کہ سیالکوٹ کی ہے. اور اس کی بہن دیکھو وہ کیسے بولتی ہے، بولنے نہیں دیتی ربی مجھے. کی بہن نہیں لگتی؟ ہیں؟ ربی کی بہن لگتی ہے آپ کو؟ نہیں لگتی نا، مجھے کہاں لگتی ہے. یہ ساری ڈانٹ اس کو میں سناتا ہوں، وہ چھوٹی ہے تو میں اس کو زیادہ ڈانٹتا ہوں کہ یہ تمہاری بہن ہے، بولتی نہیں ہے، کیسی لڑکی ہے. کل تو بدماشی بھی کر رہی تھی، آج بھی اس نے بدماشی والے جملہ بولا ہے، لیکن چلو خیر ہے، کوئی نہیں. اب ربی کہتی ہے نہیں ایسی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اچھا تو تھک جاتی ہوں گی نا رات رات. ہاں تو یہ ہے نا، یہ چکر ہو سکتا ہے پھر تانیہ سے کہ سر آپ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے میں یہ جو ہے نا بیماروں کچھ دوائی کھا، انشاءاللہ. تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا اگر آپ یہ کر لیتی ہے نا، یہ بڑا ہی ایک اچھا جی چلو جی یہ آپ کے بہت سارے ورب آ گئے بھائی، اور یہ ساتھ میں یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ بھی بہت سارے آ جائیں گے آپ کے پاس. تو یہ تو اچھا، یہ ایک دیکھو، ایک یہ بڑی ضروری چیز تھی. میں چاہوں گا یہ دوسرا بھی آپ کو ہلکا ہلکا یہ بھی سنا دوں. آپ نے لکھا ہے کچھ نا شہزاد اور احمد، آپ نے کچھ لکھا ہے کہ نہیں مجھے بتائیں پہلے. جی جی لکھا ہے؟ یہ تو بڑی بات ہے یار. دونوں نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ ایک آواز. یکتا. لکھا تو ہے سب، کچھ نہ کچھ تو لکھا ہے. نہیں تو اگر تھوڑا لکھا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. کیا لڑکا ہے یہ یار، یعنی کہ سارے ورب لکھنے تھے نا یار، 20 یہ ورب لکھنے ہیں نا، قصہ ختم کرنا ہے نا یار اس کا، پھر ایسے کیوں چھوڑ دے. اچھا چلو آج آپ نے ٹائم دینا انشاءاللہ پھر اس کو. انشاءاللہ. اب ایک آواز آئی ہے احمد. جی 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 میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہیں لکھو گے نا یار تو یہ آج بھی رہ جائے گا. پھر ہمیں کل پھر دوبارہ یہی سر درد لے کے بیٹھ رہا ہوں، پھر میں یہ کہوں گا اب مظاہرے کرو پریزنٹ ٹینس کرو. آج اس کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ. میں پھر ماضی میں جا سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں پریزنٹ ٹینس سے. کریں گے آج؟ انشاءاللہ. یار اتنا کمزور انشاءاللہ اگر آئے گا شہزاد بھائی، میرے تو بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے یار. اچھا جی تو یار احمد بھائی، آپ اہمیت نہیں سمجھ رہے اس موضوع کی. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریزنٹ ٹینس کا باب ہے نا، چیپٹر ہے نا، اس کو کلوز کرتے ہیں تاکہ میں اس میں ذرا آپ کو نا ابھی آپ کو منع کرنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، جاگنا نہیں ہے، ترتیب نہیں دینا،
सोना नहीं है, ऐसे बातें आपसे करनी है। अभी मैंने कहना है आपको कि सो जाओ, तो मैं कैसे पढ़ूंगा अगर आप ये खत्म नहीं कर रहे? तो करेंगे आज क्या? इंशाल्लाह। हाँ, चलो, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज आप होमवर्क भेजेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मैं सारा दिन इंतजार करता रहूंगा कि आप कुछ भेजेंगे लिखा हुआ, ठीक है? जरा इसको भी देखिएगा कुरान मजीद की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो सबक है हमारा वो है बुनियादी अज़कार, और ये भी उसी किताब से है, कुरान अरबी के नाम से जो प्रोग्राम हमारा है। 5 किताबें हैं इसमें, तो इसी से पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, आज ही पढ़ेंगे। इसका तर्जुमा हम करते हैं क्या, इसमें ज़ात या इसमें जलालत के नाम से। ठीक है, अल्लाह का नाम है और ये किसी से नहीं निकला। अल्लाह, अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह ही करेंगे। ये खुदावंद वाहिद का अरबी नाम है, ज़ाती नाम है। अकबर, अकबर जो है, इस तरह के जो भी नाम आता है ना, जो भी अकबर है, असगर है, अशरफ है, अकरम है, अरहम है, आप जितने भी अफजल नाम है, जितने भी आप जानते हैं, वो सब के सब में आपने शुरू में लगाना है सबसे, सबसे। उसके बाद देखेंगे कि क्या है। जैसे अकबर में क्या है, कबीर यानी कि किबर, बढ़ाई है, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा अकबर, सबसे बड़ा। असगर, सबसे छोटा। अशरफ, सबसे ज्यादा शरीफ। अफजल, सबसे ज्यादा फजीलत वाला। इसी तरह अकरम, सबसे ज्यादा सखी। तो सब 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 लगाया करूंगा मैं, अकबर जितना भी आया करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं इसमें तफजील। आगे है अजीम, भी इसका माना किया हुआ है। ठीक है, दोनों माने ठीक है। सुबहाना, सुबहाना पाकी, हर ऐब से पाक, सुबहाना। देखो, ऐब जरूरी नहीं है कि ऐब इंसानों के लिए तो ये होता है ना कि कोई काना है, कोई माजूर है, कोई भेंगा है, कोई ऐसे, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक के लिए वो भी ऐब है जो हमारे लिए ऐब नहीं है, हमारे लिए खूबी है। हमारे बच्चे होते हैं, अल्लाह पाक इस ऐब से पाक है, बच्चे नहीं है, वालिदैन नहीं है अल्लाह पाक के। अल्लाह पाक के लिए टाइम नहीं है, लिमिट नहीं है, जगह नहीं है, जहत नहीं है, कुछ भी नहीं है अल्लाह के लिए। तो हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। हो सकता है हम जाने अनजाने में अल्लाह के साथ ऐसी कोई सिफत लगा बैठते हैं जो वो नहीं होती उसमें अल्लाह पाक में, तो हमें सुबहान अल्लाह बहरहाल सुबह भी कहना चाहिए, रात में भी कहना चाहिए सुबहान अल्लाह। तो सुबहाना का माना हुआ हर ऐब से पाक, हर ऐब से। फिर है अलिफ लाम। अलिफ लाम जब आता है, इस लफ्ज का उर्दू में कोई मुतबादिल नहीं है। ये अंग्रेजी लफ्ज दी का मुतबादिल है। ये किसी आम चीज को मखसूस कर देता है, प्रॉपर नाउन बना देता है। अल कलम पब्लिक स्कूल तो इस तरह खास कर देता है कलम को। अलहमदो, ये है दो लफ्ज हैं, अल और हम्द। अल का माना हुआ खास, दी तमाम हम कहते हैं खास, और हम्द का माना हुआ सिफत, तारीफ, तमाम तारीफ है। मैंने अर्ज किया था इसमें जब हम सूरह फातिहा की तफसीर तर्जुमा पढ़ रहे थे कि तमाम क्यों पढ़ते हैं, कि हम्द की जितनी भी किस्में हैं तारीफ की, वो सब के सब, ये अल्लाह का दिया उस पे, सब के सब अल्लाह के लिए है। फिर इसी तरह लिल्लाहि, दो लफ्ज हैं, ले और अल्लाह। तो ले का मतलब मैंने बताया था कि ले का मतलब होता है के लिए, फॉर के मानों में, और अल्लाह इसमें जलालत, अल्लाह के लिए। ये तो हमें आता है। ला, ला का मतलब होता है नहीं। ये ला के यही माना है, ला नहीं, ला इलाहा जैसे कहते हैं। इलाहा, इलाहा का मतलब होता है माबूद, खुदा, मालिक, यानी कि इस लफ्ज में हकीकी खुदा यानी कि अल्लाह ताला और झूठे देवता सब ही शामिल होते हैं। इलाह, जब कुरान मजीद में इलाह का लफ्ज आएगा ना, तो जरूरी नहीं है कि ये अल्लाह के लिए आया हो, ये झूठे माबूदों के लिए भी होता है जो लोगों ने बना के रखे हुए हैं। माबूद का माना देगा, ठीक है, माबूद। इल्ला, इल्ला का मतलब होता है सिवाय, इलावा, मगर। ये तीन देखो, सिवाय और मगर, ये दूसरा माना याद रखें आप। ठीक है, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल का नाम मुबारक है, जाती नाम है, उनका नाम है। ठीक है, दुनिया में उनका नाम है, पुरानी किताबों में इनका नाम अहमद है, और कयामत में इनका नाम महमूद होगा। मोहम्मद, अहमद और महमूद, ये तीन नाम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास नाम है। बाकी तो जिस तरह अल्लाह के नाम है 99, रसूलुल्लाह के भी 99 नाम है, कुरान के भी 99 नाम है, मक्का के भी 99 नाम है, मदीना के भी 99 नाम है। तो वो उलमा ने जमा किए हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, रसूल, रसूल का लफ्ज जो आएगा ना, ये कासिद के मानों में आएगा, यानी कि पैगाम बर, जो पैगाम लाने वाला है। रसूल का माना होता है वैसे भेजा हुआ, वो शख्स भी हो सकता है, डाकिया भी हो सकता है, फरिश्ता भी हो सकता है। और रसूल जो हम शरीयत में लेते हैं माना कि अल्लाह का खास पैगाम लेके आया होता है बंदों के लिए, और उसको अल्लाह ने शरीयत भी दी होती है। मूसा, ईसा, मोहम्मद, दाऊद, ये सारे रसूल हैं। शरीक, शरीक जब आएगा ना कुरान मजीद में, शरीक का मतलब पार्टनर होता है, पार्टनर। ठीक है, अरबी में शरीक, शरीक उर्दू में भी शरीक ही कहते हैं, हिस्सेदार, बराबरी वाला। लका, लका दो लफ्ज हैं अब, लाम जबर ला और काफ जबर का। लाम का मतलब होता है जबर के लिए, लाम का मतलब होता है के लिए, और एक लाम जबर ला का माना, दूसरा माना होता है ताकीद, यानी जरूर, यकीनन, ऐसे भी होता है। दो माने होते हैं। अब यहाँ पे क्या आया है, लका, तुम्हारे लिए। काफ जबर का, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी।
तुम्हारे लिए। अऊज़ो मैं पनाह मांगता हूँ मांगती हूँ। हमने कहा था कि ये जो हमजा शुरू में आया हुआ है ये अना के लिए आया है, अना अऊज़ो मैं पनाह मांगती हूँ। बिल्लाहि दो लफ्ज हैं, बाज़रबी बाकी हमने कहा था कि 15 मानी है, 15, ठीक है, उसमें से या साथ इसके मानों में यहाँ पे आया हुआ है। और अल्लाह 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 से, अल्लाह की, मिन का माना होता है फ्रॉम, हमेशा मिन का माना होगा फ्रॉम से, यानी शैतान हमने कहा था कि ये अलिफ लाम लगा है, शैतान शैतुन पे लगा है, और ये इसका मतलब होता है हलाकत वाला, तबाह बर्बाद, तो बहुत तबाही वाला। ये जो लफ्ज होते हैं शैतान, इसमें बहुत का माना इस्तेमाल करेंगे हम, बहुत तबाही वाला शैतान। ये इब्लीस की सिफत है। और रजीम, रजीम यानी कि धुतकारा हुआ, मरदूद। रहमान, इस पे हम तफसीली बात कर चुके हैं, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अच्छा, इसी तरह जो है वो रहमान और रहीम, रहमान में भी शिद्दत है, जोश है, बहुत रहम वाला। और रहीम, रहीम का माना है ऐसा रहम करने वाला जिसकी शफकत हमेशा के लिए हो। अल ने उसे भी अल्लाह के साथ खास कर दिया है, यानी ये जो अलिफ लाम आया है ना, ये इसमें तरतीब के साथ आया है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह में भी अलिफ लाम है, और रहमान में भी अलिफ लाम है, और रहीम में भी अलिफ लाम है, तो ये तीनों एक ही ज़ात के लिए हैं, इसलिए बता रहे हैं। फिर एक लफ्ज है अहद, अहद का मतलब होता है एक या कोई एक, और वाहिद का माना होता है एक, वो जो नंबर होता है वो होता है अहद। यकता भी इसका माना करते हैं, अहद का माना यकता किया करें। वो का मतलब होता है और, बाज़ औक़ात ये यानी के माने में भी इस्तेमाल होता है, यानी के। असमद, समद अलिफ लाम जो आया है ये अल्लाह की ज़ात के लिए आया हुआ है, खास के लिए। समद का माना होता है बेनियाज, खुद मुख्तार। बेनियाज का मतलब यह है कि नेकी करने वालों की नेकी नहीं चाहिए उसे, उसकी नेकी से अल्लाह की खुदाई नहीं बढ़ती, या गुनाहों की उसे कोई कोई उसे जरर नहीं पहुंचता, गुनाहों का, लोग सारे गुनाहगार हो जाएं तो अल्लाह ताला की खुदाई कम नहीं होगी। समद है यानी बेनियाज है। अल्लाहुम्मा, ये जो अल्लाहुम्मा है ना, अल्लाह है और आखिर में मीम मुशद्दद है, ये आता है मा या ए के लिए, या के मानों में है, या अल्लाह। अल्लाहुम्मा जब भी आया करेगा तो माना करेंगे या अल्लाह। सल्ली, ये अमर है, हुक्म है, सल्ली दुरूद भेज, हाँ अपनी रहमत बेज। लेकिन हमने कहा था ना कि जब अल्लाह से बात कर रहे हो ना तो फिर ये इसका माना अमर नहीं होगा, हुक्म नहीं होगा, बल्कि इसका माना होगा इल्तिजा और दुआ। अला, अला का मतलब होता है पर, अला का हमेशा माना पर हुआ करेगा, अला। अच्छा, आल, आल का मतलब होता है औलाद और पैरोकार, आल, आल औलाद हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, औलाद के लिए भी है और पैरोकार के लिए भी है। इसीलिए जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो आले मोहम्मद से ये तुम्हारा तो ये तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि ये आल से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है और अहले बैत है, वो तो ठीक है, अजवाज है, औलाद हैं, ठीक है। और दूसरा माना जो इसका निकलता है वो सहाबा कराम भी हैं, पैरोकार भी है, उम्मत भी शामिल होती है इसमें। बिहम्दिही, ये तीन लफ्ज हैं अहबाब। बा जेर लगी है, बे का हमने कहा अभी के बा के 15 मानी है, और ये से के साथ के मानों में आता है। हम का माना तारीफ करते हैं। और हु, देखो ये कभी हु आया करेगा और कभी ही आया करेगा, कभी हे आया करेगा। हु, हे, ही, इन सब का माना होगा हिज, इंग्लिश में कहेंगे हिज, उसका, उसके, उसकी। तो बेहमदिही, उसकी हमद के साथ, बेहमदिही उसके, हमद उसकी तारीफ के साथ मैं अल्लाह का नाम याद कर रहा हूँ। इसके बाद है स्वल्ला। अब देखो स्वल्ली और स्वल्ला में फर्क है। स्वल्ली ये ऑर्डर था, ऑर्डर, ठीक है, दुरूद भेज। और स्वल्ला का ये माजी है, माजी, स्वल्ला दुरूद भेजा, भेजा, उसने दुरूद भेजा, थर्ड पर्सन ने, स्वल्ला। अच्छा, अलैहि, ये देखो अहबाब, ये हमेशा क्या होता है कि अला जब किसी के साथ मिलता है ना तो ये अले बन जाता है, अलैकुम, अलैका और अलैहि। तो मैं अभी अभी हमने कहा ना कि हु का मतलब हिज होता है, तो उस पर, अला जब भी अले ही जब आया करेगा तो हम कहेंगे उस पर, उर्दू में कहते हैं, दो अल्फाज हैं, अला का माना है पर और हु का माना होता है उसका, उसे, मजमूई तौर पर इसका माना हुआ उस पर। आल ही, आल और ही आ गया, तो ये उसकी आल औलाद पर। अच्छा, सल्लमा, ये माजी है अहबाब, सल्लमा उसने सलामती भेजी, सलाम भेजा, सलाम भेजा उसने, सल्लमा, ठीक है। अब अगर मैं इसका ऑर्डर बनाना चाहूंगा, जो ऊपर नहीं आया, स्वल्ले का तो आया हुआ है, स्वल्ले का, लेकिन सल्लमा का ऑर्डर नहीं आया, इसका होगा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम, अय अल्लाह दुरूद भेज और सलाम भेज, सल्लिम। सल्लिम होता है अमर, हुक्म होता है, और सल्लमा वो होता है माजी, उसने भेजा। अच्छा, अब जरा, अब आप ये देखो जितने माने हमने भी किए ना, अब जरा इसको दोहराते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा जल्दी से कर दें, लफ्जी लफ्जी जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और
रहम वाला। नहीं, अगर ऐसे माना किया रहीम का रहम वाला है तो फिर तो गया, माना हुआ ही नहीं। हाँ रहम करने वाला है। नहीं रहम बच्चे, करने रहीम, रहीम का माना क्या करेंगे आप? क्या मुसलसल इसमें क्या सिफत है? मुसलसल तसलसल के साथ, हाँ मुसलसल निहायत तसलसल के हाँ साथ। जी, हमेशा, हमेशा और जी मुसलसल हमने कहा था हमेशा, भाई, जी ये अपने याद रखना, हमेशा जरूर कहना इसमें रहीम का माना हमेशा मुसलसल और आएगा, ठीक है, उसमें शिद्दत होती है, निहायत का लफ्ज ठीक है इसके लिए, लेकिन हम मुसलसल और हमेशा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इसमें, शाबाश। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास अल्लाह अकबर। जी, अल्लाह सबसे अल्लाह बड़ा। सबसे बड़ा। या अल्लाह सबसे बड़ा है। हमने कहा ना अकबर का जो वजन होगा ना, अकबर अशरफ, इसमें हम माना करेंगे सबसे बड़ा, सबसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान किस लिए आता है? सब और आयतों से पाक। हाँ जी, अल्लाह सब, अल्लाह की ज़ात के लिए तमाम पाकी है, हर ऐब से पाकी है, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तरीके अल्लाह तमाम तारीफ हर अल्लाह तारीफ के लिए है, शाबाश। ला इलाहा इल्लल्लाह, लफ्जी माना करें बच्चे, लफ्जी माना करें, ऐसे माना ना करें, नहीं शाबाश, मबूद, लफ्जी माना करें। नहीं, ला, नहीं मबूद सिवाय अल्लाह, हाँ जी, ला नहीं, इलाह मदद माबूद, अल्लाह। नहीं माबूद है कोई मबूद इल्ला इल्ला सिवाय बगैर। अल्लाह, अल्लाह के, ऐसे तर्जुमा कर। हाँ जी, ये अहमद भाई को समझ आया? कितने परसेंट समझ आया अहमद जानी? एक 80% समझ। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। कोई सवाल है ज़हन में इस बारे में? वो सल्ले सल्ली क्या वो जो था ना, वो थोड़ा सा हाँ, मुझे कोई मसला नहीं, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे लफ्ज आपको बोल दिए ना, इसका माजी भी बोल दिया आगे पीछे, तो उसको कोई फिक्र ना करें। बस ये याद रखिए कि स्वल्ली जो है इसके आगे लिखते हैं ऑर्डर, ये अमर है, अमर हुक्म है। और जब हम रब ताला से करते हैं तो फिर हम इसको इल्तिजा या दुआ का नाम देते हैं। ये ऑर्डर नहीं, बल्कि लफ्ज तो अमर का है, लेकिन हम ये इल्तिजा और दुआ कर रहे हैं कि तू दुरूद भेज। तो बस इसको लफ्जी मतलब को देख लें आप, बाकी छोड़ दें खैर। और कोई जहन में कोई कंफ्यूजन है? वैसे इसका क्या बनेगा, इसका प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा और फ्यूचर टेंस क्या बनेगा, बताएं। जैसे वो दुरूद भेजता है, एक बंदा है, बताओ। हाँ, उसल्ली हुआ, या युसल्ली। युसल्ली। हाँ, हुआ युसल्ली, वो नमाज पढ़ता है या वो दुरूद भेजता है। और अगर मैं हम कर दूं, बताएं क्या होगा? वो युसल हाँ जी, मशहूर युसल्लून। लफ्ज है, मशहूर लफ्ज है, हम युसल्लून, हम युसल्लून। ठीक हो गया। तो ये था जी आज का सबक आपका, और इसमें आपने बहुत सारे लफ्ज लिखे होंगे, और आपको होमवर्क भी बहुत ज़बरदस्त मिल गया है कि आपने वर्ब सारे लिखने हैं। चलो, अल्लाह खैर करे रब तक, और फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला। और ये भी यहाँ से भी आपको डेली रूटीन के भी वर्क मिल गए आपको, तो अब आप आपके जिम्मे है, आपने अब इसको फाइनल करना है बस, ठीक है, ये फाइनल हो गया अब। फिर हम इसके आगे जरा कुछ चीज़ें आपको बतानी है, लफ्ज बताने हैं आपको, ज़रूरी अल्फाज। ठीक है जानी, काफ़ी आज के लिए जानी, जी जी, बहुत है, बहुत है। सलामत रहे इंशाल्लाह, कल फिर मिलते हैं दोबारा, ठीक है जी। और आप जहन में रखा करो यार कि चलो हम कोई जुम्मा हफ्ता इतवार भी कभी मिल लिया करें, क्लास अगर हो जाती है ना हमारी, चलो मिल नहीं लेते, कुछ गपशप तो लगा सकते हैं ना, तो जुम्मा हफ्ता इतवार को थोड़ा टाइम तो निकाला करें यार, ठीक है। और मेरा तो यानी सारा जो है ना वो क्या होता है, ये बहुत जल्दी मैं ना, बहुत जल्दी जो है वो मैं जज़ब हो जाता हूँ, यानी मैं बंदे से बड़ा जल्दी मानूस हो जाता हूँ, अपने बच्चों से जो स्टूडेंट होते हैं ना, मैं वो क्या कहते हैं, घोड़ा घास से दोस्ती करता है, वो मेरा चक्कर है कि मैं जो है ना मेरी दोस्ती हो जाती है, तो मैं फिर क्या होता है कि फिर सारा दिन जो है वेट करता रहता हूँ कि कोई आए सलाम दुआ करे, लेकिन ये आप नहीं करते होते, बिल्कुल भी सलाम दुआ नहीं करते। तो या तो क्लास के लिए जहन में तैयार रखें यार, मैं जुम्मा हफ्ते इतवार में कोई दिन निकाल के ना सलाम दुआ करूंगा, कोई नॉर्मल बात कर दें, कोई आम सी बात कर दें, जैसे कहें दरवाजा बंद कर दे, सर क्या बोलते हैं इसको, चलो चलें, क्या इसकी अरबी होती है, ये इसको सर, ये गाड़ी को क्या कहते हैं अरबिक में, ये बारिश हो रही है या धूप है तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ना कभी कभी ऐसे कुछ बोल दिया करें, कुछ भेजा करें सलाम दुआ के।
देखता हूँ मैं अहमद इस पे कितना अमल करता है इस जुम्मा हफ्ते इतवार को। और कल मिलते हैं इंशाल्लाह टाइम पे इंशाल्लाह। सलामत रहें जानू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।